Tushar, and he has recently cleared his TEF exam. And Tushar काफी देर से मेरा स्टूडेंट है एंड आज हम उसका इंटरव्यू लेंगे जस्ट आस्किंग कि हाउ एक्सपीरियंस एंड उसका एग्जाम कैसा गया एवरीथिंग दैट वी हैव टू everyone that has been asking me questions related to TF Canada or TCF Canada, we will try to give all the answers in this interview. So बी द एडवाइस दैट यू वुड गिव टू पीपल जो कि अभी भी सोच रहे हैं कि यार फ्रेंच कर लेनी चाहिए, या कुछ मे बी सी एस ए के स्कोर कम हो जाएंगे आने वाले टाइम में, या जो होप के अंदर बैठे हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले, वट वुड बी द की एडवाइस दैट यू वुड गिव टू दैम? I will just say he started, man. Even I started it, and initially everyone thinks like, "Oh man, it's very tough. It will not happen because it's me. It's my fifth language, right?" And someone might be their sixth, and I assume you can uh, start at any time, but make sure you do exam preparation, which is the most important thing. Yeah. Because in my case, I wasted a lot of time doing, the grammar again and again, again and again, which will not lead you anywhere. Exactly. The thing which will lead you somewhere is only the exam preparation. Exam Make sure if you know you're gonna give the TCF, you know what's thing gonna come. You must know what questions are already there in the exam in the past. So make sure you do that things already, and do your homework. That's the most important thing. You should know what's gonna come in the exam. एग्जैक्टली दैट इज़ द होल पॉइंट यार, कि अगर तुम सिर्फ आसमान के अंदर तीर चला रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. यू हैव टू एम एट अ टारगेट, Definitely. राइट? उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं. ओके, परफेक्ट. सो तुषार, इसके बाद हम उस चीज़ पे आते हैं कि थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, सो दैट लोगों को थोड़ी गाइडेंस मिल जाए एग्ज़ाम के बारे में. अब मेरे को बताओ, जैसे ऑनलाइन कई इन्फ्लुएंसर्स हैं या कई इंस्टाग्राम पे टीचर्स हैं जो कहते हैं कि पहले ग्रामर ख़त्म करो, फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, फिर चीज़ें करो. डू यू थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया? और वुड यू थिंक कि हमारी अप्रोच थी जो कि हम ग्रामर के साथ साथ तुम्हें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे थे, विच अप्रोच डू यू थिंक इज़ बेनिफिशियल फॉर यू? I think starting from agar if you know that आपने ये exam देना है, it's far better. Yeah. Because definitely with exam preparation you do your speaking too, right? You know you're gonna do the reading, all that things too. But अगर आपको यही नहीं पता कि TEF करना है, TCF करना है, because DELF is not acceptable, right? Yep. अगर आपको अपने एग्जाम का नहीं पता है तो preparation is very must, very, I think more than 40%. It's to clear exam, to clear French is about exam, what you're gonna give. Exactly. The grammar, people, the French is so big, you will be not able to get 100%. And even if I say like 100%, anyone can't do it because it's my sixth language or fifth language. So try to get as much as you can, as early as you can. That will be the best thing, I will say that. एग्जैक्टली दैट इज़ सच अ गुड पॉइंट कि नहीं, लोग ग्रामर पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि जिस चीज़ से उनको पीआर मिलने वाली है उस चीज़ को तो वो ट्राई कर ही नहीं रहे, राइट? सो वो ज़्यादा जी. मैटर करता है. अच्छा तुषार, थोड़ा सा एग्जाम के ऊपर आते हैं. तो तुमने TCF के भी मॉक टेस्ट दिए, राइट? हमारे पास जो वेबसाइट थी उसके ऊपर आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे थे, एंड जो आपने TF थी उसके ऊपर भी आपने मॉक टेस्ट दिए. कंपेरेटिवली जो TCF के मॉक टेस्ट थे जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे वो कितने रियल थे? एग्जाम के अंदर कितनी क्वेश्चंस थे जो एक्चुअल में आ रहे थे? बहुत रिपीट होते हैं से मतलब I have like taken the 40, I think the 40 sample paper thing, and trust me, when people say कि कुछ repeat नहीं होता है, कुछ नहीं होता है TCF में, people who have given TCF, they know very well that how the exam is being made. Exactly. They know how the questions are being repeated, and वो एक या दो questions नहीं repeat होते हैं, बहुत questions repeat होते हैं. Exactly. So it's a very good thing. अगर आपने बहुत से sample papers करे, not even 40, you must have like a good range of sample papers in your hand, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई listening ये आ रहा है तो आपको पता है कि हाँ ये मैंने पहले कहीं करा है या सुना है. So it's very helpफुल for you in that, and the exam at that moment. करेक्ट. अच्छा, क्योंकि TCF और कैनेडा और TF कैनेडा दोनों के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, राइट? रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. अकॉर्डिंग टू यू, विच वन वाज द टफेस्ट एग्जाम perspective, and which one was the toughest in terms of like French preparation perspective? I will say for the exam purpose, it's still, for me, it will be the listening. Listening part. Reading and writing, I will say that, anyone will get it at some time. Reading, Yeah. and, when I started,
when I used to do the last 10 questions of the reading part, and I don't used to get everything, and we used to do the elimination method, you think this one will not go, eliminate that. And, Exactly. it happens. It is, the vocab is so big in that, even today, like someone give me like this, so it might be tough, but still answers were getting correct because there was a proper way, a proper method to do that. Exactly. Writing the same thing, you will get it very easily. But listening, you must be, you must listen to the French every day, like probably for some hours, or even if you can do for whole day, it's much better. And speaking from the day one, start speaking. That's the most important thing. Yeah. Which I did the mistake. I don't used to do like I don't used to speak in the earliest days, but if you do it, far better. easier for anyone. Yeah. सो तुषार लाइक मैं जब तुम मेरे पास पढ़ने आए थे, जब तुम क्या कहते थे, तुमने ब्रेक ली थी, फिर उसके बाद तुम पढ़ने आए थे, मेरी क्या एडवाइस थी? जब सबसे पहली चीज़ मैंने तुम्हें क्या बोली थी? पहले 2 एडवाइसेस दी थी मैंने। ब्रेक नहीं लेना, ब्रेक नहीं लेना, और लिसनिंग करते रहना, ब्रेक नहीं लेना, लिसनिंग करते रहना डे वन से लिसनिंग। इट्स वेरी, अगर आप उसको छोड़ देंगे ना बीच में, अगर आप उसके फ्लो को छोड़ देंगे, तो आई थिंक हम स्पेशली जैसे मैं जो पॉलीग्लॉट होते हैं उनके लिए टफ बनी जाता है। आई डोंट नो, इट्स अ ब्रेन थिंग, बट you listen to so many languages in your head and you think so many languages in your head कि आप एक को स्किप कर दोगे, वो दूसरा वाला उस पे मैं कहता हूँ ज्यादा हैवी हो जाता है। इट्स जस्ट माय ओपिनियन, कैन बी डिफरेंट फॉर एनी अदर टू। हाँ, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग जो मैं पूछना चाहता हूँ यार कि एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ वाज योर एग्जाम एक्सपीरियंस? और टीसीएफ और टीएफ कैनेडा दोनों बता दो कि जिस दिन तुम एग्जाम देने गए थे कैसा था, कैसा नर्वस फील हो रहा था, वो नर्वसनेस कैसे ओवरकम की, एग्जाम कैसा गया, वो सारा बता दो एक बार। टू बी ऑनेस्ट, सबके सब नर्वस होते हैं, इवन आई वाज। पहले वाले एग्जाम में मैं बहुत था कि भाई हाँ जाऊंगा, मैं बैठूंगा, टीचर देखेगा कि हाँ भाई आज मैथ्स पढ़ा है, बहुत फील होता है। बट व्हेन आई गिव द सेकंड वन, सबका काम होता है क्योंकि सबको अपना गोल क्लियर होता है कि हाँ पहला दे दिया है, अगर नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है तो हमें कहाँ इंप्रूवमेंट लानी है, राइट? अगर हमें एक मॉड्यूल में कम नंबर आए हैं तो उसको कहाँ इंप्रूव करना है, अगर 2 में आए हैं तो उसको कहाँ पे इंप्रूव करना है। सो ये नहीं होता कि टेंशन या ट्रॉमा या टेंस नहीं होता, इंसान होता है, वी आर ह्यूमंस होता है, बट यू मस्ट डील विद इट, दैट्स द ओनली थिंग, राइट? यू कांट रन फ्रॉम इट, यू नीड टू डील विद इट। दैट्स ट्रू। एंड डू यू थिंक कि एग्जामिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम या नहीं? डेफिनेटली, if I enter the exam hall और मेरे को पता है कि आज जिसका मूड देखने में ठीक नहीं लग रहा, ये मेरे को दिक्कत देगी, द मूड एंड हाउ दे यू कैन से मूड पे बहुत डिपेंड है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग दैट from my own personal. When I gave my first exam, I was like, oh man, आज मैम का मूड सही नहीं, आज तो मेरा कुछ गड़बड़ होगा। Exactly. And happens, right? It's very important. Yes, for sure. अच्छा, थोड़ा रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ कि राइटिंग टास्क जब तुम्हें आए थे, तुमने उसकी प्रिपरेशन कैसे की थी? हमारा जो मटेरियल था उसने तुम्हें प्रिपेयर कैसे किया उन चीज़ों के बारे में? एंड जो स्पीकिंग थी, सेम फॉर स्पीकिंग, कि हमने स्पीकिंग कैसे प्रैक्टिस की? व्हाट वुड बी द कोर्स मैप दैट यू वुड सजेस्ट समवन एल्स फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग? So the writing, everyone starts with grammar first, then sentence formation, then like you said, a big paragraphs. Like when we started, I used to make a lot of mistake, right? Yeah. But whenever I used to send to you on WhatsApp, like, hey man, this is wrong. You need to improve this. Either the vocab need to be improvement. Like so sometimes the same vocab which we think like can go here, but as you tutor say, this is not the one you should use here. So that we learned that the moment, right? And writing, that's how you improve it. Like back and forth, you need to give it or send it to the tutor. Like, hey man, that's what I wrote it. Even it's a small sentence or even it's a small paragraph. You have that opinion कि इसमें गलती कहाँ है। आपको अगर अपनी गलती का ही नहीं पता होगा तो आप उसको इम्प्रूव कर ही नहीं पाएंगे। That's the most important thing. वो अगर आपको गलती का नहीं पता, आप उसको हवा में तीर छोड़ते जा रहे हो जो कहीं पे लगेगा नहीं जाके। Exactly. Right? Exactly. Same goes for speaking, right? Make sure you start from the first day. Make sure you speak it from the first day. अपने आप को रिकॉर्ड करना सीखो और उसको भेजो ट्यूटर को, एंड डोंट फील शाय दैट ओ मैन ट्यूटर मेरा कुछ सोचेगा। नो वन थिंक्स अबाउट इट, जस्ट सेंड इट एंड आपको पता चलेगा। When I started, I used to speak very fast, try to be a guy from who looks like a native. Trust me or not, try to speak slowly, try to
speak clearly, it will be far much easier and far worth it. एग्जैक्टली नो दैट्स एक्चुअली अ गुड एडवाइस कि फास्ट बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, एक्ट करने से, एक्सेंट उनका कैच करने से कुछ नहीं होने वाला, राइट? इट्स ऑल अबाउट कि तुम बस आइडिया अपने सामने वाले तक पहुंचा रहे हो एक लैंग्वेज के अंदर, राइट? Clearly present कर रहे हो. एग्जैक्टली. अच्छा, मेरे को ये बताओ कि हमारे जो स्पीकिंग मॉक सेशंस थे, यूट्यूब फर्स्ट ग्रुप सेशंस तुम लेते थे, ग्रुप सेशंस के अंदर हम स्पीकिंग करते थे, व्हेन आई यूज्ड टू असाइन द रूम्स एंड स्टफ विद अदर स्टूडेंट्स, एंड देन तुम जब एग्जाम के पास आए तुमने वन ऑन वन सेशंस लेने स्टार्ट किए विच वॉज फॉर एग्जाम स्पेसिफिक. मेरे को बताओ उन चीज़ों ने तुम्हें कैसे हेल्प किया कि तुम्हें स्पीकिंग इंप्रूव हो? So the thing is, when you do the one-on-one thing, at that time you are very much concentrated on the exam purpose, as well as when you are one-to-one. Whenever you want to do the mistake, the guy in front of you gonna record, gonna write it somewhere, gonna note it somewhere that Tushar, here is the mistake you are making constantly. Just try to do it, like either in Lizio, either you're pronouncing something wrong, or either like if you're trying to give the example which is not making sense or which is having no sense. So it's a very great thing that someone in front can note it, because in our perspective we are saying it all correct. And that's what I was thinking, like, oh, it's ये मैंने बोला, ये सही बोला है. But until unless someone not check it in front of you, who is sitting in front of you virtually, it's very important, very very important. एग्जैक्टली. तो अनदर थिंग दैट मैं कहूँगा कि डू यू थिंक कि जब हमने स्पीकिंग मॉक सेशन स्टार्ट किए थे, राइट, वट वी यूज्ड टू डू वाज कि हम टाइम्ड सीक्वेंसेस रखते हैं कि नहीं तुषार मैं तुम्हें एक मिनट दे रहा हूँ ये करने के लिए, 2 मिनट दे रहा हूँ ये करने के लिए. डू यू थिंक वो जो प्रेशर में डालता था उससे चीज़ें इंप्रूव हुई? डेफिनेटली, क्योंकि एग्जाम वैसा नहीं है कि आपको बहुत सोचने का समय मिलता है. Exactly. They just give you, like here comes a question and आपको बोलना पड़ता है. तो वो आपको पहले ही प्रिपेयर अपने माइंड में होना पड़ेगा कि भाई आपको उस प्रेशर में वहां पे भी फील होगा, सेम प्रेशर होगा. यू हैव 30 सेकंड्स, यू हैव 1 मिनट, यू हैव 2 मिनट्स, व्हाटएवर विल बी. आपको उस समय में अपना माइंड पॉइंट्स सोचने पड़ेंगे, और आपको जब वो बोलेगी लेडी दैट who comes and you need to start it, that's the only thing. आप उसको ये नहीं बोल सकते इस समय कि I need 30 more seconds or 1 minute, right? Correct. अगर उसने बोल दिया कि, और आपको अगर पहले ही वो आइडिया है, आपने पहले ही वो प्रेशर झेला है, तो you will be far easier position, मतलब बहुत इजी रहेगा आपके लिए. करेक्ट. अच्छा, अब थोड़ा सा हमारे कोर्स के बारे में बात करते हैं. सो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हम स्ट्रक्चर्ड कोर्स हमने बनाया हुआ था ग्रामर का, जिस हिसाब से हम स्टार्टिंग में पहले चल रहे थे, जब तुम फुल टाइम काम कर रहे थे, आई नो यू वर सुपर बिजी, राइट? तुम रात को आते थे एंड फिर तुम सोते थे, फिर उसके बाद क्लास अटेंड करते थे. डू यू थिंक दैट कि ये चीज़ तुम अकेले कर सकते थे? डू यू थिंक दैट कि फ्रेंच खुद सीखना, खुद मोटिवेटेड रहना विदाउट अ टीचर, विदाउट अ ग्रुप ऑफ पीयर्स, इज इट पॉसिबल? और डू यू थिंक कि it's far better to take a course, to have a teacher, to have a guidance, and then do it? A guidance, I would say, it's very easier for anyone. Like people like me, who don't have any experience with learning so many language. अगर तो आप अपना path easier बनाना चाहते हो, always go for a tutor. Because you have a structure which you already have, which you need to follow. In self preparation thing, you don't have any structure. Exactly. A lot of folks have a book, and just try to grab all the this thing to like try this grammar. Nothing gonna work. It's gonna work. Exactly. वही चीज़ है ना कि मतलब तुम एक इंसाइक्लोपीडिया उठा रहे हो, बट उसके अंदर से आने तुम्हें 100 वर्ड्स हैं, राइट? तो टीचर तुम्हें ये बताता है कि वो 100 वर्ड्स कौन से हैं, राइट? किस चीज़ पे ध्यान देना, किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना. That's the important thing. And Exactly. same goes for you have phone book. आप उसमें 1000 नंबर हैं, आपको पता है कि वो सिर्फ 100 नंबर याद करने हैं. आप एक encyclopedia लेके आपको पता ही नहीं है कि भाई 100 नंबर कौन से हैं. Exactly. You know that. Exactly. So it's very important. सुपर इंपॉर्टेंट, मेरे को लगता है सुपर इंपॉर्टेंट. आई गेस पीपल बहुत टाइम वेस्ट करते हैं जब वो ट्यूटर्स नहीं लेते, खुद से पढ़ने की ट्राई करते हैं, क्योंकि आई नो इट्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वेस्ट ऑफ टाइम. या अच्छा, अब मैं नेक्स्ट चीज़ पूछना चाहूँगा कि विच फीचर ऑन आवर प्लेटफॉर्म वॉज द मोस्ट यूजफुल टू यू? वॉज इट द मॉक एग्जाम्स, वॉज इट द द वन ऑन वन सेशंस, वॉज इट द ग्रुप सेशंस, और वॉज इट द ग्रामर कोर्स दैट वी हैव ऑन आवर वेबसाइट? कौन सी ऐसी चीज़ थी दैट यू से दैट कि नहीं सर मज़ा आ गया है, इस चीज़ ने गेम चेंज कर दी? I will still mock test. आज भी मेरा game मॉक टेस्ट है.
mock test. Seriously, when I say the mock test, when आपने वो 40 के या 50 क्वेश्चन वो सैम्पल पेपर करे होते हैं, and आप जा रहे हैं एग्जाम में, you have that confidence कि Exactly. हाँ भाई मेरे पहले इतने नंबर आ रहे हैं, मैं वहां जाके भी पहले क्रैक कर जाऊंगा. Exactly. बट आपने अगर वो करा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में आने क्या वाला है या एग्जाम कैसा होगा, कौन सी स्पीड में होगा, वो स्पीकिंग किस में आएगी, लिसनिंग क्या होगा, अगर उसका क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तब नहीं फैक्टर्स एक्सपेक्ट. तो सैंपल पेपर्स वैसे है कि the format is how exams are set up, that it's repeat a lot, and if you have Correct. a proper sample paper, I will say it's very cream on that thing कि हाँ भाई वो बहुत हेल्प करता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अच्छा, डू यू थिंक कि जैसे तुमने कोर्स भी लिया हुआ था, राइट, ग्रामर कोर्स भी लिया हुआ था, यू डूइंग स्पीकिंग एज वेल, हम तुम्हें स्पीकिंग क्वेश्चंस भी देते थे, राइटिंग भी देते थे. डू यू थिंक कि वो जो राइटिंग सेम क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे थे, स्पीकिंग के सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे, वो चीज़ ने तुम्हें हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग योर एग्जाम? Definitely, the questions are, when we do it, like when you say like do it, right? We do it, and at that moment we don't know, oh man, it's very random thing कि कहाँ ही आ जाएगा. But trust me, whatever happening at that moment, just do it without any thought process. एग्जैक्टली. That's the most important thing. As a guy, हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ही वो है कि इसका कोई सेंस नहीं है, ये कहाँ ही आ जाएगा. ट्रस्ट मी, वहां पे क्या आ जाएगा किसी को कुछ नहीं पता होता. एंड अगर आपको कोई ट्यूटर बोल रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू ग्रैब इट, ट्राई दिस वोकैब एंड ट्राई राइटिंग में ये इसको लोचा हो रहा है, या एग्जांपल अगर कौन सी पुट करनी है, कौन सी मैच चाहिए, द फॉर्मेट इज वेरी क्लियर इफ यू हैव प्रोवाइडेड बाय यू. इट्स वेरी इजी, आई विल से दैट. परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा, कोई ऐप वगैरह है जिसने तुम्हें बहुत हेल्प किया फॉर लाइक एग्जाम? नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉक टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक जो जनरल यूट्यूब पे, सॉरी अपना ऐप स्टोर्स पे ऐप्स होती है, वो कैप की, कॉन्जुगेशंस की. डू यू थिंक कि वो वर्थ इट हैं? आई सी अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉर देम, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल बाइंग बुक्स एंड स्टफ. डू यू थिंक दे आर वर्थ इट? I will say that the paying for this everything, these kinds are free available. I will say, I don't know who paid for it, but if people paid for it, like man, you need to like paying for a one-to-one session. It's a different thing. Exactly. Because the tutor gonna sit on you. The mock test is a very different thing. But for vocabs or conjugations, it's on a one-click thing, and you can find everything for Exactly. free. It's not a big deal. Exactly. So you are just wasting money. You need to put money very correctly. Like you have to put like for the speaking thing, very important. For mock test, very important. That's where you need to put the money. For vocab, for books, probably if you can do the PDFs, read PDFs, man. It's every book is available. I don't even think so, तुषार, कि यार बुक्स वगैरह काम भी करती हैं. I don't think so. मैंने तो ग्रामर इतनी की भी नहीं, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ. ग्रामर इतनी यूज भी नहीं होती है. Could so you must know what's written as a reading purpose, like उसमें लिखा क्या, author लिखना क्या चाहता है, right? But क्या आप उसको वैसे यूज करोगे? नहीं, right? You have only 5 sentences on the graph, like आपको प्रेजेंट का पता है, आपको पास्ट कंपोजर पता है, आपको कंडीशनल पता है, आपको फ्यूचर सिंपल पता है, एंड आपको शेयर हो, बाकी वो बस आपने पढ़े हुए, यूज होंगे नहीं होंगे वो भाई भगवान जाने. That's how the thing is. Exactly. But वो होते हैं एंड दैट्स इनफ. आपको वो ऐसे बुके नहीं बनाना है जिसमें 20 तरह के सेंटेंस होंगे. आपको सिर्फ करेक्टली और जहां पे वो यूज होंगे उतना ही सेंटेंस रखना है. एग्जैक्टली. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने अपना आइडिया कन्वे कैसे करना है दूसरे बंदे को. इंस्टेड ऑफ तुम बुक के अंदर पढ़ रहे हो कि द कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल, दिस सेंटेंस यू नेवर गोना यूज इन योर फकिंग लाइफ. नो, राइट? तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन द एग्जाम एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. दैट्स व्हाट, लाइक मैंने हमेशा स्टार्टिंग से ये चीज़ बोली है कि ग्रामर साथ साथ में चलती रहेगी, बट एग्जाम की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं एंड फिर लोग सेल्फ बेस्ड कोर्सेज के पीछे भागते हैं एंड फिर कुछ नहीं होता. राइट? तो वो चीज़ है. एंड डू यू थिंक तुषार कि अगर तुमने सेल्फ बेस्ड कोर्स लिया होता ग्रामर का, जैसे कोई पॉपुलर लोग हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पे जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं दबा के, अगर उनका आपने सेल्फ बेस्ड कोर्स लिया होता, what do you think would be the condition today? Definitely very different. Self-paced, आपको कोई आके टेक्स्ट नहीं करेगा, hey man, like your homework is due. Yeah, your homework is due. Your homework was in my case. Especially a person like me who used to skip class and the बीच में कभी कभार मिस कर जाता था. For that purpose, it's very that self-paced is like आपने ले लिया है,
आपका मन करेगा नहीं करेगा भगवान जाने, वो अगर वहीं पे $40 का दिया है, $100 दिया, वहीं पे पीडीएफ पड़ा रहेगा, right? एग्जैक्टली. No one, but in my case, I was like, hey man, this thing is due. Even after a month, you have a note like, ये तूने ये submission नहीं दिया, ये submission नहीं दिया, ये submission नहीं दिया. तो एक होता है यार कि I need to do my work, I need to improve on this prospect a lot. If my passive composer is going where going wrong, right? मेरे को कहाँ improvement लानी है? मेरा H wrong है, मेरा वो wrong है. कहाँ मैं S लगा रहा हूँ, ES लगा रहा हूँ, कहाँ नहीं लगाना है. तो that matters a lot. बिकॉज एक सेंटेंस बनाना और एक करेक्ट सेंटेंस बनाना बहुत अलग चीज है. एग्जैक्टली. इसमें हमें लगता है कि हम लिख देते हैं, SES से क्या फर्क हो जाता है, एग्जाम में सब मैटर करता है, सब मैटर करता है. परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने पूछना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या होते हैं, जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, वो स्टार्टिंग में बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं कि नहीं यार, अच्छा ये भी है, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ओ माय गॉड मैं कैसे करूँगी. एंड लाइक 1-2 महीने बाद दे जस्ट लीव फ्रेंच कि नहीं, मेरे से नहीं होगी, मैं कुछ और देख लूँगी, आई मूव और आई फकिंग मैरी समवन, बट मैं फ्रेंच नहीं करने वाला, राइट. ये बहुत चीज़ें होती हैं, बट लाइक व्हाट डू यू थिंक, इतना स्ट्रेस, मुझे तो लगता है इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली चीज़, राइट. बट what were those tips or what was those points कि जो तुमने यूज़ किए so that you stick so long, कि मैंने इतनी चीज़ मैंने तुमने देखी थी कि तुम कंसिस्टेंट थे, you didn't give up. बाकी और भी बच्चे थे, कई उनमें से ड्रॉप कर गए, राइट, कि हमसे बहुत मुश्किल लग रही है, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है. बट कई ऐसे स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू कि जो कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे और वो रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव हो रहे थे. व्हाट वाज दैट की फैक्टर? It's just showing up. जस्ट शोइंग अप. know, एग्जैक्टली. it's just like आपका मूड है नहीं है. अगर if the task is due, you need to do it. That's the thing. There is a very famous quote that you can't run for the demon. You just need to turn around and just face it. एग्जैक्टली. It's not easy task to stick to learn French for a year. I'm not saying it's very वो नहीं है कि आपको कोई एक चम्मच दे देगा फ्रेंच डालकर, वो घुलाओ और पी जाओ, ऐसा नहीं है. It takes time, but वही बात है, you need to show in that class, in that machine. आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आपको इसमें बैठना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो रेगुलर करनी पड़ेगी. आप ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे और बोलूंगा कि आज मेरा मन नहीं है. मन कभी नहीं करेगा. एग्जैक्टली. मन में ट्रस्ट ही बोल रहा हूँ. अपने मन की सुनोगे तो आपका मन तो बोलेगा भाई शराब पियो रात को बैठ के, नथिंग विल वर्क. बट आपको वो वर्क करना है, आपको उस मशीन पे बैठना है, अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको अपना ग्रामर करना है. स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन, स्ट्रक्चर एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहीं का वर्ड कहीं नहीं लगा सकते. ये हम कर देते हैं इंग्लिश में, फ्रेंच में. यू नीड टू फॉलो द स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. नहीं, वो चीज़ बिल्कुल सही है यार. स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और गाइडेंस, 3 चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन होंगे, अब मैं जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म करूँगा. लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि तुषार, मेरे को ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया एग्जैक्टली, आपने कितना टाइम दिया है फ्रेंच को, और आपकी कितनी देर में फ्रेंच क्लियर हुई है? 6 months. 6 months. It's a good time. Yeah. 6 months, राइट. जो भी तुम्हारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो, सो मेरे ख्याल से पहले 4-5 महीने तो हमारी लाइक फ्रेंच के ऊपर ही लग गया था, एंड लास्ट 1 महीना हमारा एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे लगा था, राइट. Got it. And best thing, if you start exam preparation from very आप थर्ड मंथ में अगर आप पे ग्रामर का होल्ड है, आप सेंटेंस बना सकते हैं, स्टार्ट इट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. Exactly. आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे थे पिछले एग्जाम्स में. क्या आपको प्रेशर का पता होना चाहिए कि 1 मिनट में क्या सोचना है, कैसी लाइंस बनानी है, एग्जांपल्स देनी है. अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है, राइट, कि आपने क्या बोलना है, इट्स वेरी इजी. एग्जैक्टली. अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, पूरा अभी तक एक्सपीरियंस फ्रेंची विद सेट के साथ तुम्हारा कैसा रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच? It's very good. Before, I know you even before as a tutor, and मैं तब से जानता हूँ, तब से कोई नहीं जानता, और आज भी मैं तेरे साथ ही पढ़ रहा हूँ. So it's very, I was having that trust factor कि I know that Sid है, and वो निकलवा देगा, and from the first day until now, let's see, I have the exam, so that's how it works. Okay, perfect.
ठीक है तुषार, सो थैंक यू सो मच। आई होप लिसनर्स को वो चीज़ें पता लगी जो उन्हें पता करनी थी, एंड लाइक सबको वो इन्फॉर्मेशन मिली जो जिस चीज़ में किसी को डाउट वगैरह थे, जो डाउट्स मेरे पास आए थे मैंने वही क्वेश्चंस पूछे आगे। सो आई होप सबने इंटरव्यू पसंद किया, एंड या ऐसे ही और इंटरव्यूज आते रहेंगे। एंड इफ someone wants to reach out to Tushar, I'll put his Instagram in the link, so that in the bio, so that you guys can reach out to him, and if you have any questions just directly ask him, and I guess तुषार उस चीज़ को बुरा नहीं मानेगा, तुषार में भी रिस्पॉन्ड कर देगा। हाँ, अगर तुम उससे पैसे मांगोगे I do full-time job. I do